Okay, hello everyone. Now today we are going to discuss about the thermal expansion. Now in the previous video we have discussed about the heat. Heat के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. We have discussed कि how does the heat travel, कैसे heat travel करती है, and what are the conditions required for the propagation of heat, or we can say for the traveling of heat. What are the necessary conditions? What are the process which are by which the heat can transfer from one place to another. Okay, we have talked about the conduction, radiations and convection. We have talked about this, and we have also talked about that heat is a form of energy. We have discussed about the concept of temperature. Okay, but before starting further, let me tell you a little bit more about the temperature. So for measuring temperature we are having three scales. तीन scales हम लोगों के पास हैं. The first one is the Celsius scale, second one is the Fahrenheit scale, and third one is the Kelvin scale. Kelvin scale is taken as the SI unit of the temperature. Suppose if you want to convert डिग्री सेल्सियस को बेटा अगर कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन स्केल, सो व्हाट यू विल डू, यू सिंपली ऐड 273 डिग्री. ओके, यू सिंपली ऐड 273 डिग्री. और जस्ट इसका उल्टा अगर करना है कि केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, सिंपली सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 273. फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग से 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो यू सिंपली से कि 30 प्लस 273, सो इट गिव्स मी 303. सो दिस मच Kelvin. So simply by adding 273 and by subtracting 273 we can convert this Celsius into Kelvin or Kelvin into Celsius. Okay, but SI unit of temperature is taken as Kelvin. जो SI unit है इसका temperature का, it is taken as Kelvin. And accordingly we are having three scales of temperature. The first one is the Celsius scale, एक Celsius scale होगा. Second one is your Fahrenheit scale, एक Fahrenheit scale होगा, and third one we are having the Kelvin scale. So in Celsius scale, what we have done, a particular length is divided into 100 equal parts. ठीक है, if we are talking about the Celsius scale, एक particular length को हमने क्या किया, we have divided into 100 equal part, and one part of it represent 1 degree Celsius. This is 100 divisions we are having, total 100 divisions we are having, and the lower fixed point is taken as 0 degree, that is the freezing point of water, and upper point is taken as 100 degrees Celsius, that is the boiling point of water, and between these we are having 100 equal part, and each part represent 1 degree Celsius. Okay, but it's represent 1 degree. Similarly in Fahrenheit scale में बेटा क्या होगा, this scale is divided into, the same length is divided into 180 equal part, and 32 degree is taken as your lower fixed point. Okay, 32 degree is taken as lower fixed point, and upper fixed point is taken as 212 degree Fahrenheit. Then we are having the Kelvin scale. In the Kelvin scale, what we have done, it is again same length is divided into 100 equal part, so it is 273. The lower fixed point is 273, and upper fixed point is taken as 373. Okay, so this is the relation. We are not concerned with this. हमें अभी इसके बारे में कंसर्न नहीं है, बट सिंपली फॉर योर नॉलेज पर्पस आई एम टेलिंग यू कि दीज आर द दिस इन दिस वे दैट वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. और केल्विन को उसमें फ़ारेनहाइट में, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो वी नो के सिंपली बाय एडिंग 273 डिग्री और बाय सब्ट्रैक्टिंग 273 डिग्री वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली. Now when we talk about the thermal expansion, now thermal expansion means कि thermal means heat, that means expansion on heating. जब कोई बॉडी एक्सपैंड करेगी on heating, so we call it the thermal expansion. So thermal expansion is nothing but it is simply expansion due to heating.
हीट करने पे कोई बॉडी एक्सपेंड करती है, ऑब्वियसली बॉडी एक्सपेंड करेगी, सो वी कॉल्ड इट अ थर्मल एक्सपेंशन। अगर बॉडी की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स ब्रेथ, सो द एक्सपेंशन is in length is more as compared to its breadth. The expansion is called the linear expansion. If length और breadth दोनों लगभग बराबर हैं, तो in that case we consider area wise, so we can call it a superficial expansion. And then the last one, if तीनों की तीनों length भी है, breadth भी है, height भी है, if we are talking about the 3D, so in that case we have to consider the cubical expansion, that means the expansion in the volume. In next chapter we are going to study in detail about all these. Now if we talk about water, water shows you the anomalous expansion. Anomalous expansion means कि on heating we know कि अगर किसी बॉडी को हम लोग हीट करेंगे तो बॉडी विल एक्सपैंड, या सपोज इफ वी आर हीटिंग अ लिक्विड, किसी लिक्विड को अगर सपोज हम लोग हीट कर रहे हैं तो दैट लिक्विड विल एक्सपैंड। लिक्विड क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, हीट करने पे एक्सपैंड करेगा। कोई भी लिक्विड होगा वो क्या करेगा, इट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। बट वाटर इज वन ऑफ द टिपिकल केस in which the density of the water is maximum at 4 degrees Celsius. Now to make it clear, let me take it once again. What I say, I am saying you K density of the water is maximum at 4 degrees Celsius. Now what is the relation between density and expansion now? So if I write down the formula of density equals to mass upon volume. Okay, density equals to mass upon volume. So it means that when we heat a body, if we are talking about the liquid, so in the liquid the expansion will be volume wise expansion. कैसा होगा, उसके volume में expansion होगा. So it means कि यहाँ से मास में कोई चेंज नहीं आएगा, द मास विल रिमेन कांस्टेंट. सो वी कैन से कि द डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम में. इट मींस कि जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा द डेंसिटी विल डिक्रीज. ओके, व्हेन द वॉल्यूम विल इंक्रीज द डेंसिटी विल इंक्रीज. बट इफ वी टॉक अबाउट वाटर, वाटर के बारे में अगर हम लोग बात करें, वी आर सेइंग कि दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर की जो डेंसिटी है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. अबाव 4 डिग्री, इसके अबाव चले जाओ आप एंड इसके बिलो आ जाओ, दोनों ही केसेस में क्या होगा, डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. डिक्रीज, और यहां पर भी क्या करेगी, डिक्रीज. ओके, अगर इफ यू आर गोइंग बिलो 4 डिग्री, दैट मीन्स कि इफ वी आर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, हम लोग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री पे आ रहे हैं, तो द डेंसिटी विल डिक्रीज. होना क्या है कि आप उसको लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि डेंसिटी को इंक्रीज होना है. डेंसिटी को इंक्रीज होना है क्योंकि लिक्विड क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं. जो भी पर्टिकुलर वॉल्यूम है वाटर का, उसको क्या कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो. तो इन दैट केस द वॉल्यूम शुड बी, डेंसिटी शुड बी इंक्रीज. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ओके, ऐसा नहीं होगा. डेंसिटी ऑफ द वाटर विल डिक्रीज. वाटर की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी. ओके, सेम वे इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट मीन्स इफ वी आर गोइंग अबाउ 4 डिग्री, 4 डिग्री से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले उसका वॉल्यूम इफेक्ट होगा. वॉल्यूम कैसे इफेक्ट होगा, द वॉल्यूम विल इंक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ओके, डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ओके, बट यहां पे जस्ट उसका उल्टा है, डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है. सो दिस इज कॉल्ड द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. दैट मीन्स के जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पे. अगर आप अबाव 4 डिग्री जाएंगे और बिलो 4 डिग्री जाएंगे, बिलो 4 डिग्री जब जाओगे तो वॉल्यूम को आप कंप्रेस कर रहे हो तो डेंसिटी शुड इंक्रीज. लेकिन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है. अबाव 4 डिग्री डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है. अबाव 4 डिग्री तो डिक्रीज करेगी ही, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. एंड वी नो फ्रॉम द रिलेशन डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है. तो वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी. तो अबाव 4 डिग्री तो
डेंसिटी को डिक्रीज करना ही है, बट इफ यू टॉक बिलो 4 डिग्री की बात हम लोग करें तो डेंसिटी को इंक्रीज करना है, बट डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज नहीं करती, तो डेंसिटी विल डिक्रीज. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प द एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव इनसाइड द वाटर. होता क्या है, सपोज एक बहुत बड़ा आपके पास कोई पॉन्ड या कोई रिवर या कोई लेक है. इन दैट लेक स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जब बाहर बहुत ज्यादा एटमोस्फेयर कैसा हो गया, इट्स कूल डाउन एंड जो टेम्परेचर है इट्स गो बिलो 0 डिग्री या 4 डिग्री से नीचे चला गया. टेम्परेचर क्या हुआ, 4 डिग्री से नीचे आ गया. तो इन दैट केस जो वाटर का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इट गेट फ्रीज. यहां पे क्या होगा, ये वाला पार्ट फ्रीज हो जाएगा. फ्रीज होगा, यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. इसके कांटेक्ट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री होगा, लेकिन जैसे जैसे करके हम लोग नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, 4 डिग्री सेल्सियस होगा. और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट है, दे कैन सर्वाइव इनसाइड दिस. क्योंकि ये क्या हो गया, बिल्कुल हीट इज द दिस आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. आइस क्या होती है, हीट की बैड कंडक्टर होती है. जब ऊपर वाला पार्ट फ्रीज हो गया तो इनसाइड का जो हीट वाला पार्ट है वो बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज दिस आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये आइस क्या है, बैड कंडक्टर है. तो जो जितनी भी हीट अंदर कंजर्व है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर का जो कूलनेस है वो अंदर नहीं आ पाएगी. तो दैट मीन्स ये हीट को स्टोर कर लेगा, और कहीं इनसाइड में जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 4 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा तो दैट मीन्स वाटर डू नॉट गेट फ्रीज्ड. वाटर क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा, इट डू नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस. आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, और द एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स जो है दे कैन सर्वाइव इनसाइड दिस लेक. सो दिस हेल्प्स द एक्वेटिक एनिमल्स. सो just go through this. Some homework is given to you in the previous video and I hope कि you have not done it. मुझे पता है बेटे आपने नहीं किया है वो, तो but you have to do that homework because मैंने अब homework का एक physics का homework का चैनल बना दिया है, तो I want your homework in that channel. Okay, physics का homework I need daily. जो whatever we are doing, so you have to send me daily. Okay, if you are not sending me daily, I give your name or give your name to the principal ma'am. So for today, thank you very much.